So as you know that I'm doing previous questions of thermodynamics from IAS exam. Okay, actually I'm dealing the question of GATE, IAS and IAS. This video is especially for the IAS questions. Okay, and the topic will be first law of thermodynamics. Okay, this is about myself. I did master from IIT Bombay and I'm the former professor from the mechanical engineering department. Okay, so let's see some more question from the IAS exam. Okay, okay, so you can see here the figure is given. Okay, so given the path 1 2 3 of a system absorb 100 kilojoule as heat and does 60 kilo work, while the path 143 okay, if you have watched the previous video, we have already done this kind of problem. Okay, so if you are following me, you can easily solve this question, but still I will do here also. The heat absorbed during the cycle 143. Okay, so they are asking what is heat for this. This is actually simple question. The previous video question that we have seen, that was a little bit difficult, but this is very simple question. Okay, so they are asking the heat absorbed during the cycle. इसी cycle में 143 में ही they are asking what is the heat absorbed. Okay, so we have to use first law of thermodynamics. That's it. Okay, 1 2 3, just 1 second. No. Okay, so this is question also is the similar as the we have done for the previous question. So what we have to do here, see, for 1 2 3 they have given the heat and work. Okay, obviously बात है कि heat और work ही दिया होगा, internal energy निकालेंगे and that will be common for both the cycle, for this cycle and for this cycle. Okay, so by first we'll use first law of thermodynamics for this cycle. We'll calculate delta U, that is internal energy, and that will be common for this cycle. वो हमें इसमें use कर लेना है. We'll get the answer. Okay, so for Q123 is equal to Q13 plus QW123, and this is Q is given 100, U13 is given 60, so U13 is 40 kilojoule. Okay, and this will be common for the this cycle. 413 इसके लिए common होगा 143. इस पर डायरेक्शन थोड़ा अलग बना हुआ. I think this will be like this. Okay, ये थोड़ा सा उल्टा है. This will be like this. Okay, 143. So now for 143 U13 plus 143, और ये जो हमारा U13 जो इस वाले साइकिल के लिए वो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे. एंड हीट इज गिवन, work is given. Okay, this is for 143, work is given, that is 20, so 40 plus 20 is equal to 60. Okay, simple सा question है. So again I will repeat, for this type of problem, internal energy will be common for both the cycle. So for one cycle they will give you heat and work. You just calculate the internal energy. That will be common for the other cycle, whether they are asking heat or work. Based on that they will give one value. Like here they have given the work, they are asking heat. They can also give the heat, they can ask the work. So just use that internal energy which you have calculated from the first cycle and get the whatever value they are asking for the second cycle. Okay, so this is the thing. Yeah, so the answer is 16D. या इसमें देखिए इफिशिएंसी टोटल वर्क पूछेगा, ऑब्वियसली बात है. द गिवन फिगर, जस्ट द गिवन फिगर shows the variation of force in an elementary system while undergoes a process during which a plunger position changes from 1 to 0 to 3. यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है. If the internal energy of the system at the end of process is 2.5 joule, then the heat absorbed during the process. देखिए इसके लिए हमें इस फिगर के लिए, इस डायग्राम के लिए हमें दिया हुआ है और इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, and they are asking heat. Okay,
So we have to calculate work done for this given system, and then we'll use the first law of thermodynamics, that is dq is equal to dw, and we'll get the heat. Okay, so what will be the work done for this system? Just area of this whole thing. Okay, ये पूरा एरिया, ये दिस इज एक रेक्टेंगल एंड ये एक ट्राइंगल, ये दोनों ऐड कर दो, you'll get the work. ठीक है, और जूल में दिया तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, तो वो न्यूटन मीटर जूल ही होता है. Okay, so whatever work done you will get, whatever area you will get, that is actually work done. Okay, and just add with this internal energy, you will get heat. So you can see here, so total work done is what? The internal, like, you know, the rectangle area of this rectangle 5 into 3 plus area of this triangle, half of base into height. Okay, that's the same thing they have done here. So you will get 17.25. Okay, after getting work done, we have to use the first law of thermodynamics, that is dq is equal to du plus dw. Okay, du is given 2.5, dw is given 17.5. Okay, so 2.5 plus 17.5, you'll get 20. Okay, so the answer is B. Fine, so the answer is B. It's a very simple question, okay, but very good question. This type of question you can get in GATE exam, or in any, you know, engineering services or state engineering examination which is related to the mechanical engineering. You can get this kind of question. Even I have seen many question this type of. Okay, again देखिए इसमें ये एक साइकिल दिया हुआ है. ओके, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी. ओके, टीएस डायग्राम है. ओके, पीवी और टीएस डायग्राम दो होता है. ठीक है, आपको पता है. सो पीवी डायग्राम में जब आप उसका एरिया निकालोगे तो वर्क आएगा, टीएस डायग्राम में एरिया निकालोगे तो हीट आएगा. बस ये हमें याद रखना है. ओके, सो एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? डी एस इंटू डी टी, डी एस इंटू टी. तो टी एस डायग्राम में जो आप निकालोगे एरिया, दैट विल बी हीट. पीवी में जो एरिया निकालोगे वर्क होगा. वो आपको पता ही है, पहले से मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बट स्टिल जिसको नहीं पता उसके लिए बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे टी एस डायग्राम है, यहाँ पे जब आप एरिया निकालोगे तो दिस विल गिव हीट. ठीक है, सो द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस अंडरगॉन बाय अ सब्सटेंस एज शोन इन गिवन डायग्राम. ठीक है, तो चाहिए इसमें एफिशिएंसी हमसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है. अब देखिए इसमें एफिशिएंसी क्या होता है? हीट सप्लाई आई मीन वर्क डन बाय हीट सप्लाई. ठीक है, तो वर्क डन क्या है? वर्क डन हमारा ये टोटल है, ये जो एरिया ये हमारा वर्क डन है. हीट सप्लाई क्या है? ये वाला, दिस इज, ये हमारा हीट सप्लाई है. ठीक है, हीट सप्लाई, हीट रिजेक्ट. यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप हीट सप्लाई कर रहे हो. ठीक है, और यहाँ से हीट निकल रहा है. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, दैट विल गिव द, दिस एरिया विल गिव द वर्क डन. ठीक है, so you just see here. Okay, so what will be the efficiency area under the 5 and 1500. 5, ये देखिए वर्क डन, जो वही मैं बोल रहा हूँ आपको तब से, ये जो पूरा एरिया है दिस इज वर्क डन. ठीक है, एंड दिस इज एंड, और हीट सप्लाई क्या, ये टोटल जो जा रहा है हमारा, ये पूरा हीट सप्लाई. ठीक है, मतलब ये जाएगा, मान लो कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिलीज भी होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 डाला, बट ये हमारा जो हीट सप्लाई है दिस इज टोटल. ठीक है, क्योंकि टीएस डायग्राम है ना, तो एरिया अंडर 0 to 1500, मतलब ये वाला एरिया. ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के 0 to 1500 तक जितना भी एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, 3 एरिया होगा. ओके, दिस एरिया, फिर दिस एरिया. ठीक है, फिर ये वाला एरिया. ओके, और ये वाला भी एरिया, ये सारा हमें चाहिए. ठीक है, ये सब जो होगा हीट सप्लाई होगा. सो वर्क डन विल बी दिस, बस उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लोगे. मैंने आपको बता दिया, आप आराम से निकाल सकते हो. ठीक है, बस उसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 0.6. ठीक है, तो बस आप ये चीज़ देखो कि टीएस डायग्राम या पीवी डायग्राम है,
सो टीएस में ये टोटल हमारा हीट सप्लाई हो जाएगा, ये पूरा एरिया जो होगा दैट वी हैव टू कंसिडर एज अ हीट सप्लाई, एंड दिस एरिया विल बी द वर्क डन। ओके, दिस जो ये हमारा जो बना हुआ है ऐसे एरो, दिस विल गिव द वर्क डन। काफ़ी ज़्यादा इसमें रेड हो गया, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, यू विल गेट 0.6। अब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर चेंज डेल्टा T फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, यू कैन आंसर, आई डोंट थिंक इज रिक्वायर्ड टू टेल एनीथिंग। एमसीपी डेल्टा एमसीवी डेल्टा टी, और क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू एमसीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इंटू डेल्टा टी। तो अब ऐसी बात है, एमसीवी डेल्टा टी। ओके, आंसर इज ए। फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द हीट ट्रांसफर्ड in a thermodynamic cycle of a system consisting of 4 processes is successive. Okay, this much unit क्या दिया, heat transfer. Net change in internal energy of system is will be. heat transfer दिया हुआ, पूछ रहा है internal energy कितनी होगी। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रहा है कि क्लोज है, इनक्लोज है, ओके, ओपन है, कुछ भी मेंशन नहीं कर, बट बस ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो जब हमें नहीं पता है कि क्लोज है या नहीं है, तो हाउ वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो और देखिए, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है, और दिस इज एक्चुअली ज़ीरो। ठीक है, तो दिस विल बी ज़ीरो। अब एक चीज़ और देखिए, वो तो एक चीज़ तो ये भी है कि दिया नहीं है कि क्लोज है कि नहीं है, बट इसमें देखिए ये जैसे बोलते हैं ना कि पॉइंट्स एक तरह से दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे अलग से आपको कुछ बताने की जरूरत है। इट्स अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी एंड ऑफ अ सिस्टम जो होता है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये चीज़ इट्स अ प्रॉपर्टी, ये इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टी ही होती है। वही चीज़ यहाँ पे उसने क्वेश्चन के फॉर्म में बोल दिया है। ओके, सो दैट्स वाई द आंसर इज ज़ीरो। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। आप इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तो ये चीज़ उसके एज अ प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं, सो इट्स अ प्रॉपर्टी ओनली। ओके, सो द आंसर इज बी। Okay, during a process with heat and work interaction, the internal energy of a system increases by 30 kilojoule. The amount of heat and work interaction are respectively. देखिए, internal energy during a process with heat and work interaction, internal energy of system increases by this. ठीक है, अब बोल रहा है कि हमारा जो हीट एंड वर्क होगा वो कितना होगा, उसका इंटरेक्शन कितना होगा। अब देखिए हमारा, अब ये थोड़ा सा देखिए लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। 30 किलो जूल से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें अब जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन को यूज़ करके हमें देखना पड़ेगा कि 30 किलो जूल किस में आएगा। ठीक है, तो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे -30 किलो जूल -80 किलो जूल, इन दोनों को जब आप इसमें रखोगे, ओके, तो आपको 30 किलो जूल मिल जाएगा। ओके, सो द आंसर इज ए। इसमें हमें थोड़ा सा बैक बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ऑप्शन से आंसर तक जाना है। ठीक है, हमें 30 किलो जूल लाना है किसी तरीके से। अब ये ऑब्वियसली किसी तरीके से नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके। अब इसमें आप ये वैल्यूज़ को, चारों वैल्यूज़ को रखिए, अब पहले ही ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं, मतलब हमें इसमें ये जानना है कि हम थोड़ी देर के लिए लगेंगे हिट एंड ट्रायल करने के लिए, बट हमें कुछ नहीं करना है।
फर्स्ट लॉ यूज़ करना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से वैल्यूज़ को रखना है, जिस वैल्यू के लिए 30 आ जाएगा दैट विल बी आवर ऑप्शन, ओके, दैट विल बी आवर आंसर एज वेल एज ऑप्शन, ठीक है। सो द आंसर इज ए, ओके। अ मिक्सचर of gases expand from 0.03 meter cube to 0.06 meter cube at a constant pressure of 1 megapascal and absorb 84 kilojoule of heat during the process, okay. The change in internal energy of mixture, okay. So these are the options. अब देखिए वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ देखिए हमेशा फर्स्ट लॉ ही हमें यूज़ करना है। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमें वर्क डन को वॉल्यूम के टर्म में लिखना होगा। वर्क डन वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है, पी डी वी, प्रेशर दिया हुआ है, ओके। सो ठीक है, सो क्या होगा, पी डी वी, वर्क डन पी डी वी हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी, डी यू दिया हुआ, इंटरनल एनर्जी ही पूछ रहा है हमसे। हीट एब्जॉर्ब 84 किलो जूल दिया हुआ है। अब देखिए यहीं पे मैं बोल रहा हूँ आपको जूल में रखना है, इट्स किलो जूल, आप जूल में रखो। 84 इंटू 10⁻³ डी यू हमें कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। प्रेशर 1 किलो, अब इसको आप मेगा पास्कल में दिया, पास्कल में कन्वर्ट कर लो, 1 इंटू 10⁻⁶। डी वी डेल्टा वी, V2 माइनस V1, तो 0.06 माइनस 0.03, बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 54 किलो जूल, ठीक है। बस फर्स्ट लॉ का ही खेल है और कुछ नहीं, उसको ही अलग अलग तरीके से यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, ओके।